رات کے 11 بجے تھے۔ برانڈن کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ زیادہ ہی شراب پی لی تھی۔ دفتر سے واپس آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ خود کھانا تیار کرنے کو دل نہیں چاہا۔ وہ سوچ رہا تھا اب کسی بھی لمحے گھنٹی بجے گی اور لیونارڈ بٹنوں کے بارے میں جرح کرنے موجود ہوگا۔ اس نے شراب کی الماری سے اسکاچ وسکی کی ایک بوتل نکالی اور پینے بیٹھ گیا۔ اسے لیونارڈ کو پوری کہانی بتانا پڑے گی اور یہ بات باہر بھی پھیل جائے گی۔ پھر وہ کمبخت بونی، وہ ضرور خط پوسٹ کر دے گا۔ کیرن کے لیے یہ کہنا آسان تھا کہ وہ اپنے باپ کو سنبھال لے گی، مگر اسٹین وڈ اسے ملازمت سے ضرور برطرف کر دے گا۔ پھر بیٹی کا مسئلہ بھی تھا۔ اس کی زندگی تباہی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تب برقی گھنٹی بجنے لگی۔ لیونارڈ آ گیا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے اٹھا اور لابی میں جا کر دروازہ کھول دیا۔ مجھے جلدی سے اندر آنے دو، کیرن نے کہا۔ ابھی تک کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ وہ اسے ایک طرف ہٹا کر اندر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیرت زدہ برانڈن کے منہ سے نکلا۔ معلوم ہوتا ہے خوب پیتے رہے ہو۔ کیرن رہائشی کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ برانڈن آنکھیں میچ کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھو۔ کیرن نے اپنی مٹھی کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک گولف کی گیند جیسا بٹن رکھا تھا۔ تمہیں یہی چاہیے تھا نا؟ کیرن مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس کا انتظام کر دوں گی۔ یہ کہاں سے آیا؟ کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ میں لیون کی دکان پر گئی، وہاں سب مصروف تھے۔ میں نے ایک جیکٹ سے بٹن نکال لیا اور باہر نکل آئی۔ کسی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ بٹن گر گیا ہے۔ اب تو خوش ہو؟ برانڈن نے بٹن اٹھا لیا۔ چند لمحوں میں وہ خود کو 10 برس کا جوان محسوس کرنے لگا۔ تمہارا بیڈ روم کہاں ہے برانڈن؟ کیرن بولی۔ آؤ جشن منائیں۔ برقی گھنٹی کی مسلسل آواز نے برانڈن کو جگایا۔ وہ اٹھا تو یوں محسوس ہوا جیسے سر کے اندر دھماکے ہو رہے ہوں۔ گھنٹی بدستور بج رہی تھی۔ اوہ خدا، معلوم ہوتا ہے رات میں نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ کیا بجا ہے؟ بیڈ کے قریب رکھی ہوئی گھڑی میں 8:15 بج رہے تھے۔ اس نے قریب رکھا ہوا گاؤن پہن لیا۔ یہ گھنٹی کون بجا رہا ہے؟ بستر پر لیٹی ہوئی کیرن نے پوچھا۔ برانڈن چونک کر گھوما۔ وہ اس کے بارے میں تو سب کچھ بھول گیا تھا۔ اب اسے بستر پر بیٹھے دیکھا تو گزشتہ رات کی ایک ایک بات یاد آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیرن بٹن لے کر آئی تھی۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ بستر پر آئے تھے۔ شراب کا نشہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے ٹھیک سے یاد نہیں رہا کہ پھر کیا ہوا، مگر وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ آخر اسے یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ اس چڑیل کو بیٹی کے بستر پر لایا تھا۔ ایک ذلیل حرکت کرنے کے احساس نے برانڈن کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ کوئی آیا ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ کہیں چھپ جاؤ۔ بیچارہ برانڈن، کیرن بیڈ سے اترتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ برانڈن نے دروازہ کھول دیا۔ باہر لیونارڈ اور جیکب کھڑے تھے۔ دھماکے اور تیز ہو گئے۔ برانڈن کو اچانک غصہ آنے لگا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ ان بٹنوں کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا ہے۔ لیونارڈ برانڈن کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ آدمی تمام رات باہر رہا تھا؟ اس نے سوچا۔ برانڈن نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ اس سے محتاط رہ کر بات کرنی ہے، اس نے دل میں کہا اور قدرے نرم لہجے میں بولا۔ میں تمہیں کچھ دیر بعد فون کرنے والا تھا۔ مجھے بٹن مل گئے ہیں، مگر آفس کو دیر ہو رہی ہے۔ کیا تم پھر نہیں آ سکتے؟ بٹن مل گئے ہیں؟ لیونارڈ نے کہا۔ ہاں، وہ میری بیوی کے بٹن بکس میں تھے۔ تلاش کیا تو مل گئے۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ لیونارڈ آگے بڑھا۔ برانڈن پیچھے ہٹ گیا۔ لیونارڈ اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے جیکب۔ برانڈن انہیں ساتھ لیے رہائشی کمرے میں آیا۔ الماری سے بٹن بکس نکالنے لگا تھا کہ اسے یاد آیا کہ بٹن تو اس کی جیکٹ کی جیب میں ہیں۔ یہاں ٹھہرو، اس نے لیونارڈ سے کہا۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ بیڈ روم میں گیا۔ کیرن سامنے نہیں تھی، شاید باتھ روم میں ہو، اس نے سوچا۔ جیکٹ کرسی پر پڑی تھی۔ اسے اٹھا رہا تھا کہ لیونارڈ بیڈ روم کے دروازے تک آ گیا۔ اس نے بیڈ کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ اس پر 2 افراد سوتے رہے ہیں۔ جیکٹ کی جیب سے بٹن نکال کر برانڈن آگے بڑھا۔ لیونارڈ کو دروازے سے ہٹنا پڑا۔ یہ ہیں وہ بٹن، برانڈن نے کہا، اور اب خدا کے لیے مجھے پریشان کرنا ختم کرو۔ لیونارڈ نے بٹن شمار کیے۔ ٹھیک ہے، بٹن پورے ہیں۔ وہ بولا۔ اب میں جیکٹ بھی دیکھنا چاہوں گا۔ برانڈن تیزی سے واپس بیڈ روم میں گیا۔ جیکٹ لے کر واپس آیا۔ لیونارڈ نے جیکٹ میں لگے ہوئے بٹن چیک کیے۔ وہ پورے تھے۔
शुक्रिया, लियोनार्ड ने कहा। उम्मीद है दोबारा परेशान करने नहीं आऊंगा। अब आने की कोई वजह भी नहीं है। तुम मुझे काफी परेशान कर चुके हो। ये एक कत्ल की तहकीकात है मिस्टर ब्रॉन्डन। अजीब अजीब बातें पेश आ रही हैं। मैं जैकेट और बटनों का इजाफी सेट अपने साथ ले जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं है? जल्द ही दोनों चीजें वापस कर दूंगा। ले जाओ, मैं ये जैकेट दोबारा देखना नहीं चाहता। इसे कहीं फेंक देना। लियोनार्ड के जाने के बाद ब्रॉन्डन ने दरवाजा बंद कर दिया और बेडरूम में वापस आ गया। कैरिन बेटी के कंघे से बाल दुरुस्त कर रही थी। तुम्हारे दोस्त मुतमईन होकर चले गए? उसने पूछा। मैं कल रात नशे में था और अच्छा अच्छा। कैरिन हंसी। मुझे अपने मुजरिम जमीर का निशाना मत बनाओ। तुमने तमाम रात मुझे सोने नहीं दिया। ब्रॉन्डन का जी चाहा कि वो उसे जान से मार दे। वो बेडरूम में चला गया। गुस्ल करने का वक्त नहीं था। जल्दी जल्दी शेव बनाकर लिबास तब्दील किया। कैरिन किचन में कॉफी बना रही थी। कॉफी बनाकर उसने खुद पी और एक प्याली ब्रॉन्डन को भी दी। आओ चलें। ब्रॉन्डन ने कॉफी पीकर कैरिन से कहा। अहमक, पहले जरा झांक कर देख लो। तुम मुझे बगैर किसी की नजर में आए यहाँ से कैसे ले जाओगे? मगर फिर तरकीब भी उसने बता दी। वो जल्दी से कार की पिछली सीट पर लेट गई और इस्तेमालशुदा कपड़ों की गठरी अपने ऊपर रख ली। ब्रॉन्डन कार लेकर निकला और तब तक उसका दिल धक धक करता रहा जब तक हाईवे रोड ना आ गई। कैरिन गठरी हटाकर सीट पर बैठ गई। कार ब्रांच ऑफिस के सामने रुकी तो कैरन ने उससे कहा कि वो ऑफिस में जाकर डाक देखे और कपड़े वो खुद ही लॉन्ड्री में देकर आएगी। ब्रांडन ने मुकफ्फल दरवाजा खोला, फर्श से डाक समेटी और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर हुई थी कि फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से बेटी की आवाज आई। यह आवाज ब्रांडन को अपने दिल पर एक धक्के की तरह लगी। डार्लिंग, डैडी की तबीयत बहुत खराब है, कांपती आवाज में उसने बताया। डॉक्टर कहते हैं बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो मुसलसल तुम्हें पूछ रहे हैं। ब्रॉन्डन ने आंखें बंद कर लीं। वो बेटी के वालिद से अपने बाप की तरह मोहब्बत करता था। इस खबर ने उसका चेहरा जर्द कर दिया। घबराओ नहीं, उसने कहा। मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ। मैंने फ्लाइट्स चेक की हैं। एक तैयारा 10:30 बजे प्रवास करेगा। क्या तुम उससे आ सकते हो? हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। मैरी और जैक भी आ रहे हैं और मैं भी तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल जाऊंगी। ब्रॉन्डन रिसीवर रख रहा था कि कैरेन आ गई। उसने ब्रॉन्डन को परेशान देखा तो पूछा, अब क्या हुआ? मेरे ससुर की हालत नाजुक है, ब्रॉन्डन ने जवाब दिया। वो मुझे बुला रहे हैं। मुझे जाना होगा। कोशिश करूंगा कि पीर तक वापस आ जाऊं। तुम भूल रहे हो कि आज बॉनी $10,000 वसूल करने आएगा। वो जहन्नुम में जाए, ब्रॉन्डन झिल्लाकर बोला और तकरीबन भागते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। मोटी कैटी वाइट आग के सामने बैठी थी। कॉलोनी में सुबह का नाश्ता कर लिया गया था और बेशतर हप्पी या तो तैरने या कुछ कमाई करने जा चुके थे। उसे ये वक्त बहुत अच्छा लगता था जबकि तमाम कॉलोनी पर खामोशी तारी होती थी। जल्द ही बॉनी नाश्ता करने आता होगा। कैटी ने उसके लिए 5 सॉलेज अलग निकाल कर रख दी थी। अंडे खत्म हो गए थे, इसलिए वो टोस्ट तलने का इरादा कर रही थी। वो बॉनी के बारे में सोचने लगी, जो उससे बार बार कहता था कि लोगों को तुम्हारी जरूरत हमेशा रहेगी। किसी ने इतनी अच्छी बात पहले कभी उससे नहीं की थी। वो जानती थी कि ये सच नहीं होगा, मगर बॉनी जैसे नौजवान के मुंह से ये अल्फाज निकलना भी बड़ी बात थी। फिर मुमकिन है वो संजीदगी से कह रहा हो। ये भी मुमकिन है कि वो कभी उसे अपने केबिन में आने की दावत दे। वो तस्वुर में खुद को बॉनी की आगोश में महसूस करने लगी। क्या सो रही हो कैटी? उसने जल्दी से आंखें खोली तो सामने मिस कॉलो खड़ा था। वो उसे भी पसंद करती थी। हाँ, बस ख्वाब देख रही थी। कैटी मुस्कुराई। क्या ख्वाब देख रही थी? ये ख्वाब बताने के नहीं होते। क्या तुम्हें कभी ख्वाब नजर नहीं आते? ख्वाब सभी देखते हैं, मिस कॉलो ने कहा, फिर रुक कर बोला। मैं फिक्रमंद हूँ कैटी। हम लोगों का टीवी पर आना अच्छा नहीं हुआ। मुमकिन है हमें यहाँ से उठा दिया जाए। फिर हम कहाँ जाएंगे? रहने के लिए कोई न कोई जगह हमेशा मिल जाती है। कैटी ने फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया। क्या बच गया है? वो बहुत रिजायत पसंद थी और किसी भी जगह खुश रह सकती थी। बस कुछ लोगों का साथ, पकाने के लिए आग, सॉलेज और स्पेगेटी मिलती रहे तो उसे कुछ और नहीं चाहिए था। 10 बज चुके हैं। हम यहाँ 2 साल से हैं। अगर ये जगह छोड़नी पड़ी तो बड़ी मुश्किल होगी। मगर कैटी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो सोच रही थी कि चंद मिनट बाद बॉनी नाश्ता करने आएगा और वो चाहती थी कि जब वो आए तो वो अकेली हो। क्या तुम तैरने नहीं जा रहे हो?
उसने कदरे बेताबी से पूछा। मिस कोलो हंसने लगा। कोई आने वाला है क्या? अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बॉनी कह रहा था कि वो कल चला जाएगा। मुझे भी बताया था, मगर मुमकिन है वो कभी वापस आ जाए, कैटी ने कहा। उसके चेहरे पर जो मायूसाना तासुरात थे, उससे मिस कॉलो को अफसोस हुआ। हाँ, क्यों नहीं, जब चाहे आ सकता है, मिस कॉलो ने हमदर्दी से कहा। अगरचे ये कहते हुए उसे अंदाजा था कि अब वो लोग बॉनी को कहीं नहीं देख सकेंगे। वो पलटा और समुंदर की तरफ चल दिया। कैटी ने प्लास्टिक के थैले से सॉलिड निकाले और फ्राइंग पैन में डालकर उसे आग पर रख दिया। फिर उसने कुछ टोस्ट काटे और मजीद कुछ तेल डालते हुए इन्हें भी फ्राई पैन में तलने लगी। जब दोनों चीजें मुनासिब तौर पर पक गईं तो उसने फ्राई पैन आग से उतार लिया। बॉनी अभी तक नहीं आया था। अचानक कैटी को ख्याल आया कि आज वो बॉनी का नाश्ता खुद उसके केबिन में ले जाए। मुमकिन है कुछ देर बैठकर बॉनी से बातें करने का मौका मिल जाए। उसने जल्दी से सॉलेज और टोस्ट एक प्लेट में रखे, छुरी और कांटे का इजाफा किया और प्लेट उठाकर बॉनी के केबिन की तरफ चल दी। दरवाजे के करीब रुककर उसने आहिस्ता से दस्तक दी। कुछ इंतजार किया। जवाब में कोई आहट सुनाई नहीं दी। नाश्ता ठंडा होने लगा था। फिर उसने जरा जोर से दरवाजा खटखटाया। फिर भी कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खुल गया। मौनी, उसने पुकारा, मैं तुम्हारा नाश्ता लाई हूँ। खिड़की के नीम व पट से तेज धूप अंदर आ रही थी। सामने ही मेज थी। उसने निगाह उठाई। मेज पर बॉनी का कटा हुआ सर रखा था, जिस पर कुछ मक्खियां भिनभिना रही थीं। प्लेट कैटी के हाथ से नीचे गिर गई। स्कॉलों ने समुद्र में नहाते हुए कैटी की खौफनाक चीखें सुनी। ये अंदाजा लगाते हुए कि जरूर कोई खतरनाक बात पेश आई है, वो दीवाना वार बॉनी के केबिन की तरफ भागने लगा। टेरी डॉन, पुलिस फोटोग्राफर, बॉनी की टुकड़े टुकड़े लाश के फोटो लेने के बाद करीबी झाड़ियों की तरफ दौड़ा, जहां उसे उल्टी हो गई। जोनाथन, हीस और लेवनार्ड जैसे सख्त आसाब के मालिक भी केबिन में ज्यादा देर नहीं ठहर सके। केबिन में डॉक्टर लुइस और उसके दो मददगार रह गए। ये उसी दीवाने की हरकत है, हैगलर ने कहा। हम ये सोचने में गलती पर थे कि वो जिनसी दीवाना है। वो कोई तशद्दुद पसंद पागल लगता है। इसका मतलब है कि कुछ और लाशें भी मिल सकती हैं। क्या तुमने कल टीवी पर हैमिल्टन का प्रोग्राम देखा था? इसने पूछा। हैमिल्टन ने कहा था कि मुमकिन है बॉनी ने कातिल को देखा हो, मगर बता ना रहा हो। गालिबन यही सुनकर हमारे दीवाने ने बॉनी को खत्म करना जरूरी समझा। मगर उसके टुकड़े करने की क्या वजह थी? एगलर ने कहा। क्योंकि वो होशमंद नहीं, पागल है, और पागल अपने जुनून में कुछ भी कर सकता है। इसी वक्त डॉक्टर लुइस केबिन से बाहर निकला। तीनों आदमी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर? हीस ने पूछा। मेरा अंदाजा है कि उसे रात 2 बजे के लगभग कत्ल किया गया है, डॉक्टर लुइस ने जवाब दिया। गालिबन कातिल ने दरवाजा खटखटाया होगा, और जैसे ही बॉनी ने दरवाजा खोला उसने चाकू मार दिया। मौत फौरन वाक़ई हो गई। लाश के टुकड़े किसी चौड़े फल वाले वजनी चाकू से किए गए हैं। शायद इस तरह का कोई चाकू हो जिससे खेतों में गन्ने काटे जाते हैं। दो ताकतवर जरबात मारकर सर भी अलग कर दिया गया। चाकू यकीनन बहुत तेज होगा। क्या उसे केबिन से बाहर निकाल सकते हो? हम केबिन का जायजा लेना चाहते हैं। मेरे मददगार यही कर रहे हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं मिस कॉलो से बात करता हूँ, लियोनार्ड बोला। लड़की जिसने लाश पाई सख्ते जैसी कैफियत में है। सरे दस्त वो कुछ नहीं बताएगी। एक दूसरी एम्बुलेंस भी आ गई। मैं उसे मुसक्कन इंजेक्शन देकर अस्पताल ले जाता हूँ, डॉक्टर ने कहा और आगे बढ़ गया। कैटी रेत पर दोनों हाथों से मुंह छुपाए लेटी थी। उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर दूसरी एम्बुलेंस में ले जाया गया। लियोनार्ड मिस्कोलो के पास गया, जो रेत पर खामोश बैठा था। वो रात में 2 बजे के करीब कत्ल किया गया है, लियोनार्ड ने कहा। क्या तुमने कोई आवाज सुनी थी? एक दुबला पतला हप्पी आगे बढ़ा। मैंने सुनी थी, उसने बताया। डस्टीलॉक्स भी आ गया और जेब से नोटबुक निकाली। तुम कौन हो? लियोनार्ड ने हिप्पी से पूछा। मेरा नाम बोदाकर है। गुज़िश्ता रात मैं पेशाब करने के लिए उठा, तब 2:45 बजे थे। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरे पास घड़ी है कि मेरे वालिद ने मेरे 21वें यौम पैदाइश पर दी थी। मुझे बहुत पसंद है और बार बार देखता रहता हूँ। तो तुम 2:45 बजे पेशाब करने के लिए उठे, फिर क्या हुआ? बॉनी के केबिन में रोशनी हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर कोई इतनी देर तक जागना चाहता है तो जागे, मुझे क्या। क्या तुमने उसे देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा, बस रोशनी देखी। अलबत्ता कुछ सुना जरूर। खटाक खटाक 2 आवाजें।
ऐसी आवाज़ें जो उस वक्त पैदा होती हैं जब कोई कसाब हड्डी वाला गोश्त काट रहा हो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हड्डी वाला गोश्त काटने पर कैसी आवाज़ पैदा होती है? इस तरह कि मेरा बाप भी एक कसाब है, बुदाकर ने जवाब दिया। ये 2:45 की बात है। हाँ, लियोनार्ड ने सोचा कि इससे कम से कम कत्ल के वक्त का तयन जरूर हो जाता है। वो दो आवाजें जो बुदाकर ने सुनी बॉनी का सर काटने की थी। फिर क्या हुआ? मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। रोशनी उस वक्त भी मौजूद थी। हाँ, कुछ और बता सकते हो? बस मुझे इतना ही मालूम है। यहाँ देर तक क़याम करोगे? हाँ, कम से कम 1 महीना। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैं तुमसे दोबारा बात करूंगा, लियोनार्ड ने कहा। और सुनो, ये बात अपनी हद तक रखना। बॉनी टीवी पर आ गया और कातिल ने उसे हलाक कर दिया। चुनाचे तुम किसी से, खास तौर पर प्रेस और टीवी वालों से कुछ मत कहना। तुम्हारा मतलब है कातिल मेरे पीछे भी आएगा? बुदाकर खौफजदा नजर आने लगा। बस अपना मुंह बंद रखना, लियोनार्ड ने जवाब दिया और अपने चारों तरफ दूसरे हप्पियों की तरफ देखा। किसी और ने कोई बात देखी या सुनी है? सबने नफी में सर हिला दिया। लियोनार्ड ने दृष्टि को बुदाकर के घर का पता नोट करने की हिदायत की और बोनी के केबिन की तरफ चल दिया। होमी स्क्वाड के आदमी और फिंगरप्रिंट अमला केबिन में अपने काम में मसरूफ था। हीस एक तरफ खड़ा सिगरेट पी रहा था। बुदाकर से जो कुछ मालूम हुआ था लियोनार्ड ने उसे बता दिया। वह हमें मौत का यकीनी वक्त मालूम हो गया, हीस ने कहा। यह अहम बात है। होमिसाइड का एक आदमी केबिन से निकला और उसने हीस के हाथ में 2 लिफाफे दिए। ये बॉनी के बैग से मिले हैं, उसने बताया। हीस और लियोनार्ड ने देखा कि एक लिफाफे पर मिसेस ब्रॉन्डन का नाम और पता लिखा है और दूसरे पर स्टैनवुड का। उसने लिफाफे के अंदर रकम के मुतालबे के 2 खतूत भी देखे जो बॉनी ने ब्रॉन्डन और कैरन को दिखाए थे। तो बॉनी इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। हीस ने खत वापस लिफाफों में रख दिए। यही कत्ल का मकसद हो सकता है। हो सकता है, मगर मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि ब्रॉन्डन लाश के यूं टुकड़े कर सकता है। ये किसी दीवाने का काम है और ब्रॉन्डन दीवाना नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि उस शख्स के दिमाग में कैसे ख्यालात हैं? हीस ने कहा। यह खत चीफ को दिखाओ कि वो क्या ख्याल करते हैं। 20 मिनट बाद लियोनार्ड डिटेक्टिव रूम में दाखिल हुआ तो जैकब ने बताया कि 5 मिनट पहले लियोन ने फोन किया था और कह रहा था कि वो लियोनार्ड से बात करना चाहता है। चीफ अंदर हैं? लियोनार्ड ने पूछा। वो मेयर से मिलने गए हैं, जैकब ने जवाब दिया। लियोनार्ड ने लियोन को फोन किया। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? राब्ता मिलने पर उसने पूछा। हाँ, इन गोल्फ की गेंद जैसे बटनों के बारे में, लियोन ने जवाब दिया। मेरे पास एक जैकेट बाकी थी। एक गाहक ने उसे पसंद कर लिया, मगर मैंने देखा कि उसका एक बटन गायब है। लियोनार्ड चौंक गया। बटन टूटकर गिर भी सकता है, उसने कहा। बिल्कुल नहीं, उसे काटा गया है, लियोन ने कहा। मेरे बटन इतने कमजोर नहीं लगाए जाते। मैं वो जैकेट देखना चाहता हूँ। मगर वो तो मैंने बेच दी, दूसरा बटन लगा दिया था। किसके हाथ बेची है? लियोनार्ड ने जल्दी से पूछा। कोई शरीफ आदमी था, उसने कीमत नकद अदा कर दी। गोया तुम्हें उसका नामो पता नहीं मालूम? वो शहर से गुजर रहा था, बता रहा था कि टेक्सास का रहने वाला है। उसने कीमत नकद दे दी, तो मुझे नामो पता नोट करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर लियोन, फर्ज करो किसी ने वो बटन काट लिया है और अब वो उसे अपनी जैकेट पर लगा लेता है या इजाफी सेट में शामिल कर देता है, तो तुम पहचान सकते हो कि वो उसका अपना बटन है या काट कर लगाया हुआ? मैं कैसे बता सकता हूँ? हर बटन बटन होता है। लियोनार्ड के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे गोश्त पीसने वाले आले का ब्लेड गोश्त के बजाय हड्डी से टकराया हो। ये कैसी आवाज थी मिस्टर लियोनार्ड? लियोन ने चौंक कर पूछा। ओके ओके, शुक्रिया। लियोनार्ड ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया और फिर जैकब को लियोन से अपनी गुफ्तगू के बारे में बताया। ब्रॉन्डन की जैकेट और बटनों का इजाफी सेट पुलिस लेबॉर्ट्री ले जाओ, उसने ताकीद की। और उनसे कहो कि वो इनकी जांच करके बताएं कि आया तमाम बटन एक ही साजिश से बने हैं और एक ही वक्त में बनाए गए हैं। जैकब चला गया तो लियोनार्ड ने कुछ देर सोचा और एक बार फिर लियोन को फोन किया। एक सवाल और मिस्टर लियोन, उसने कहा। क्या गुज़िश्ता 2 दिनों में मिस्टर ब्रॉन्डन तुम्हारी दुकान पर आए थे? मिस्टर ब्रॉन्डन? जी नहीं, उनसे तो कई हफ्तों से मिलना नहीं हुआ। वो मेरे मुस्तकिल गाहक नहीं हैं। लियोनार्ड ने एक ठंडी सांस भरी और लियोन का शुक्रिया अदा करते हुए रिसीवर रख दिया। 12:15 बजे टेरिल मेयर से एक तवील मुलाकात के बाद वापस हेडक्वार्टर आया। जोनाथन, हीस और लियोनार्ड उसके ऑफिस में जमा हुए।